No, sir. The screen is not visible to you. The Sir, visible the है screen is not visible. अरे see properly. सर दिख रही है The मेरे को boy, तो the boy is saying that it is visible, and you are saying Yes, that sir, it it is is not visible. visible. तो कैसे कह सकते हो ऐसे? अपना नेटवर्क चेक करो अगर नहीं विजिबल हो रही तो। Jessica, what do you say now? Is it visible or not? Sir, yes, sir, visible. चलो सही है, गुड। What do you see on screen? What do you see on screen? Chapter 2, The Address by Margam and Co. So far we have learnt about Margam and Co. Location of the story, background of the story. Today we are going to discuss line-to-line explanation of the text. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. ये एक शॉर्ट स्टोरी, एक पायनेंट अकाउंट है। पायनेंट का मतलब होता है पेनफुल, दुखद कहानी है। एक डॉटर की जो अपनी माँ की बिलोंगिंग्स की खोज में चली जाती है हॉलैंड में युद्ध के बाद। कब? आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। व्हेन शी फाइंड्स देम द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ। जैसे ही वो उन ऑब्जेक्ट को पा लेती है, ऑब्जेक्ट को फेस करती है, सामना करती है, तो वो ऑब्जेक्ट उसकी अर्लियर लाइफ की मेमोरीज को क्या कर देते हैं? स्टर कर देते हैं, यानी तरोताजा कर देते हैं। However, she decides to leave them all behind and resolve to move on. हालांकि वो जो है उन सब को जो है छोड़ने का डिसीजन ले लेती है और जीवन में मूव ऑन करना डिसाइड कर लेती है। मूव ऑन करना मतलब आगे बढ़ते रहना, ठीक है। Do you still know me? I asked. Who is I here? Narrator. Narrator. Name of the narrator? Marga Minko. Margot Minko. It's not Margot, it's Marga. It's Marga Minko, okay? The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. Who is the woman? Mrs. Darling. Woman. Very nice, Mrs. Darling. नेहा, डू यू अंडरस्टैंड फ्लैशबैक? मूवीज में फ्लैशबैक होता है, सीरियल्स में भी Yes, होता sir. है, ऐसा स्टोरीज में भी होता है। सो डू यू अंडरस्टैंड फ्लैशबैक? Yes, sir. So try to get the essence of the flashback. Actually the story is divided into pre-war and post-war. Flashback में बताई गई स्टोरी बीच बीच में फ्लैशबैक में चली जाती है। अंडरस्टूड? Yes, sir. बीच बीच में देखते रहना, ठीक है। ये जो अभी मैं टेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आफ्टर वॉर है और बीच बीच में प्री वॉर भी आएगा। तो प्री वॉर और पोस्ट वॉर दोनों में डिवाइडेड है स्टोरी। The woman looked at me searchingly. I mean, Mrs. Darling looked at the narrator searchingly. She had opened the door a chink. Chink का मतलब थोड़ा सा दरवाजा खोला था उसने। I came closer and stood on the step. मैं नजदीक आई उसके and stood on the step. और स्टेप्स पर खड़ी हो गई। स्टेप का मतलब समझ ही रहे होंगे। स्टेप का मतलब है, चम्मच ले आएगा, वो कांटे वाली ले आना, यानी कि घर की जो आगे की सामने की पोर्च के पास वाली जो सीढ़ियां होती है ना, वहां खड़ी थी नरेटर। नो, आई डोंट नो यू। Mrs. Darling said to the narrator that she did not know her. I am Mrs. S. daughter. मैं Mrs. S की डॉटर हूँ, said the narrator. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. उसने दरवाजे पर अपना हाथ रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो कि दरवाजे को और ज्यादा नहीं खोलना चाहती हो। Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. यानी she gave no mark of identification.
and she kept staring at the narrator in silence, यानी चुपचाप शांति से जो है नरेटर की तरफ क्या करती रही, घूरती रही। कौन? मिसेस डॉर्लिंग। और उसने उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना, पहचानने जैसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया। Perhaps I was mistaken. When the woman said that she did not know her, she gave no identification mark. The narrator thought that perhaps she had mistaken. I thought perhaps it is not her. ऐसा लग रहा था कि मिसेस डॉर्लिंग नहीं है। I had seen her only once, fleetingly, and that was years ago. मैंने मिसेस डॉर्लिंग को कैजुअली सा देखा था और वो भी वर्षों पहले देखा था। It was most probable that I had rung the wrong bell. शायद तक मैंने गलत बैल बजा दी है। The woman let go of the door and stepped to the side. महिला ने जो है दरवाजे को बंद कर दिया, let go of the door, दरवाजे को बंद होने दिया, and stepped to the side, और साइड में चली गई दरवाजा बंद करके। She was wearing my mother's green knitted cardigan. एक एक चीज को ध्यान रखना। How did the narrator come to know that she was at the right address? ठीक है, तो देखिए क्या हुआ। Mrs. Darling was wearing the green knitted cardigan of the narrator's mother. The wooden buttons were rather pale from washing. यानी जो वुडन के बटन थे ना, वो वॉशिंग की वजह से कैसे हो गए थे, येलोइश हो गए थे। पेल का मतलब येलोइश होता है। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. मिसेस डॉर्लिंग ने देख लिया था कि मैं, आई मीन नैरेटर, जो उसकी तरफ देख रही थी, उसके कार्डिगन की तरफ देख रही थी, तो उसने क्या किया कि अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वाज राइट। लेकिन अब नैरेटर को पता चल गया था कि वो सही एड्रेस पर थी। तो समझ गए? हैव यू अंडरस्टूड हाउ डिड द नैरेटर कम टू नो दैट शी वाज एट द राइट एड्रेस? Yes, sir. Then tell. Sir, because of her mother coordinate. One more question. As per the discussion we had yesterday, I told you about Mrs. Dorling. Mrs. Dorling brought the belongings of the narrator's mother. Do you think she was greedy? She brought the belongings as she was greedy, or she was really helping the narrator's mother? Sir, she was greedy. How? Because if she really wanted to help her mother, then she would have returned the things back and would not have said no to recognize her. वेरी नाइस, वेरी नाइस। यानी को मना ही नहीं करती। और इन सब का बेहतरीन जस्टिफिकेशन पता है क्या है? सबका बेहतरीन जस्टिफिकेशन है कि अगर वो सच में उसकी हेल्प करना चाहती थी, इफ शी रियली वाज सिंपैथेटिक टू द नैरेटर्स मदर, शी मस्ट नॉट हैव वोर्न हर कार्डिगन। अगर तुम्हारी मम्मी की फ्रेंड तुम्हारे यहाँ से कोई सामान ले जाए ये कह करके मैं सेफ्टी के लिए ले जा रही हूँ, मैं आपकी चीज़ों को सेफ रखूँगी, तो क्या वो पहनेगी? आई डोंट थिंक दैट शी विल वियर, अगर थोड़ी सी भी शर्म होगी तो। बट यहाँ मिसेस डॉर्लिंग देखो दे दनादन पहनी जा रही है आराम से, इज्जत के साथ में। Well, you know my mother, I asked. तो एकदम से भौचक्की आवाज में बोली, हैव यू कम बैक? सेड द वुमन। ये सारा का सारा कन्वर्सेशन मिनट्स का है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा था। हैव यू कम बैक? सेड द वुमन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। व्हाट डज मिसेस डॉर्लिंग मीन?
What does Mr. Darling mean? What does Mr. Darling mean? बोलो. She wanted to ask that she came back early. See, Mr. Darling believed that all the Jews had been killed in the Holocaust. In the genocide, all the Jews had been killed, nobody is left. That is why she thought that nobody will come back to take the belongings. But when the narrator went, she was surprised and she asked, "Have you come back? क्या आप वापस आ गए हो?" क्योंकि उसको लग रहा था कि सब लोग क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं हॉलोकास्ट के दौरान. Do you know the meaning of Holocaust? Meaning of Holocaust. सर नरसंहार. Tell in English. I mean killing of large number, killing of people in large number. And what do you mean by genocide? Killing the people of a particular gene. Very nice. Particular gene, particular community. What do you mean by anti-Semitism? Anti-Semitism. Anti-Semitism means. Don't know, sir. Sorry. क्या कह रहे हो? Sir, I don't know. Okay, anti-Semitism means a principle or theory which is against the Jews. The state of people, the thinking of the people, those who are against Jews, is known as anti-Semitism. Okay. Only me. नरेटर ने कहा कि मैं वापस आई हूं क्या सिर्फ. A door opened and closed in the passage behind her. उसके जस्ट पीछे पैसेज में, यानी कि जो बरंडा था ना घर का, उसमें एक दरवाजा खुला और बंद हो गया. A musty smell emerged. और उसमें से एक सीलन भरी बदबू आई. I regret I cannot do anything for you. Mr. Darling said to the narrator that she could not do anything for her. I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. मैं ट्रेन से यहाँ आई हूँ, मैं एक मोमेंट के लिए आपसे बात करना चाहती हूँ. It is not convenient for me now, said the woman. I cannot see you another time. ये मेरे लिए convenient नहीं है, मैं आपसे इस टाइम पर नहीं मिल सकती, आप जो बाद में आना. She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. यानी उसने दरवाजे को बंद कर दिया बड़े ही सावधानी पूर्वक, जैसे कि मानो घर के अंदर कोई डिस्टर्ब ना हो जाए. I stood where I was on that step. The curtain in front of the bay window moved. यानी जो बाहर की ओर खुलने वाली जो खिड़की थी ना, उस खिड़की का पर्दा हटा और उस पर्दे में से Perhaps this was Mr. Darling's daughter. ये कौन होगी? मिस्टर डॉर्लिंग की डॉटर होगी. 100% मैं ये कह सकता हूँ. तो someone stared at me. उसमें से किसी ने नरेटर की तरफ देखा and would then have asked what I wanted. और शायद उसने तब पूछा होगा कि मैं क्या चाहती थी. तो ये मिस्टर डॉर्लिंग की डॉटर ही होगी, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर में डिस्कशन उसकी डॉटर के अलावा और किसी का नहीं है.
Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. तो डॉर्लिंग ने यही कहा होगा उससे अपनी बेटी से कि नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही है. It was nothing. I looked at the nameplate again. Darling, it said in black letters. यानी नेम प्लेट पर क्या लिखा हुआ था? डॉर्लिंग लिखा हुआ था. ऑन व्हाइट एनेमल, यानी व्हाइट एनेमल यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड वाले पेंट के ऊपर ब्लैक लेटर्स में क्या लिखा हुआ था? डॉर्लिंग लिखा हुआ था. एंड ऑन द जेम और पिलर पर अ बिट हायर, थोड़ा सा ऊपर, द नंबर 46. क्या लिखा हुआ था? नंबर 46. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me that address years ago. जैसे मैं स्टेशन पर वापस जा रही थी ना, तो मैंने उस एड्रेस के बारे में सोचा जो मुझे मेरी माँ ने वर्षों पहले दिया था. It had been in the first half of the war. Story has gone now in the pre-war. ध्यान रखना, फ्लैशबैक में चली गई है. It had been in the first half war. I was home for a few days, and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. देखो, नरेटर कह रही है कि इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, आई वाज होम फॉर अ फ्यू डेज. मैं कुछ दिन के लिए घर आई थी. तो वो कहाँ रहती थी? वो कह रही है कि मैं जो है कुछ दिन के लिए घर आई थी. तो इसका मतलब वो रहती कहाँ थी? Perhaps she had been staying in hostel. किसी Somewhere हॉस्टल में stay. with Perhaps she had been in the hostel. And it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. और नरेटर को तुरंत समझ आ गया था कि उसके घर में कुछ चेंज आया है, चीजें मिसिंग है. आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीजों को मिस कर रही थी मैं. माय मदर वो सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली. और मेरी माँ इस बात को लेकर के सरप्राइज थी कि मैं देखो कितनी छोटी उम्र में चीजों को नोटिस करने लग गई हूँ, और कितना जल्दी से चीजों को नोटिस करने लग गई हूँ. देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother. मेरी माँ की एक परिचित थी. Old acquaintance का मतलब होता परिचित होना. Whom she hadn't seen for years. Whom she hadn't seen for years. जिनको मेरी माँ ने भी जो है कई सालों से नहीं देखा था, मुलाकात ही नहीं हुई थी. She had suddenly turned up. वो अचानक से आई थी. And renewed their contact. और उन दोनों ने अपने कॉन्टैक्ट को क्या कर लिया था? रीन्यू कर लिया था. यानी मदर ने, नरेटर की ने, और मिसेस डार्लिंग ने. सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली. तब से वो हमारे घर पर रेगुलरली आती थी. कौन आती थी रेगुलरली? Mrs. Darling. मिसेस डार्लिंग. हु वाज मिसेस डार्लिंग? Narrator's mother friend. ऐसे नहीं, ठीक से कहो. ओल्ड अक्वेंटेंस ऑफ नरेटर्स मदर, ऐसे कहो ना इसको. या फिर ऐसे कहो, फ्रेंड ऑफ नरेटर्स मदर. आप एक ही सेंटेंस में छोटे से में दो अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा सकते हैं. Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. She took all the table silver in one go. यानी जितनी भी सिल्वर की चीजें उस टेबल पर रखी रहती थी ना, सबको ले गई एक बार में. And then the antique plates that hung there. और फिर पुरानी प्लेट्स जो वहाँ पर लटकी रहती थी. She had trouble lugging those large vases. यानी जो फ्लावर पॉट्स थे ना, उनको ले जाने में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी. And I am worried she got a crick in her back from the crockery. और मैं इस बात से चिंतित थी क्योंकि इनकी बैक में क्या आ गई थी? क्रॉकरी के वजन की वजह से जर्क आ गया था, झटका आ गया था. माई मदर shook her head pityingly. और मेरी माँ ने जो बड़ी मिजरेबल तरीके से, जब वो इतना भारी सामान लेके जा रही थी ना, तो उनको हाथ हिलाते हुए गुड बाय कहते हुए देखा था मैंने. आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर. मैंने कभी हिम्मत ही नहीं की उनसे पूछने की. शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ. उन्होंने खुद से मुझे बताया था. She even insisted she wanted to save all my nice things. और उन्होंने ये भी कहा था कि वो मेरी सारी कीमती चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को बचाना चाहती थी. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. अगर हमको यहाँ से जाना पड़ा तो हम सब कुछ खो देंगे. इसीलिए वो मेरी सारी चीज़ों को जो वो मिसेस डार्लिंग के घर पर सेफली तरीके से रखना चाहती थी. What does Mrs. S say? If we shall lose, if we have to leave here, we shall lose everything.
Why did Mrs. S say, if we have to leave here, we shall lose everything? सर बिकॉज वहाँ पे उस कम्युनिटी के लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि नाजी ऑक्यूपेशन वॉज गोइंग ऑन इन हॉलैंड। ऑल द ज्यूज वर फोर्स्ड टू लिव इन ज्यूइश क्वार्टर्स, यानी ज्यूइश क्वार्टर में रहने के लिए फोर्स किया जा रहा था। एंड देयर प्रॉपर्टी एंड वेल्थ वर कॉन्फिस्केटेड। क्या कर ली जा रही थी? जब्त कर ली जा रही थी। कल मैंने पूरी पूरी घटना बताई थी ना आपको। हिटलर, द चीफ ऑफ नाजी, द एम्परर ऑफ जर्मनी was in the hatred of Jews because he believed that Germany lost World War I because of one of the Jewish member। इसका नाम बताया था मैंने, क्या नाम बताया था? उसकी वजह से हार गए थे। तो उसका पूरा का पूरा गुस्सा जो फूट पड़ा था ज्यूज को लेकर के, और वो बिल्कुल जो है जहां जहां तक जर्मन एम्पायर की कंट्रोल थी ना, उन जगहों से वो जो है ज्यूज को खत्म करना चाहता था। दैट इज वाई he had frequently been sending them to the concentration camp। और concentration camp के नाम पर वो उनको गैस चैम्बर्स में भेज रहा था, जिनको आज इन फेमस वर्ड्स में क्या कहते हैं? गैस चैम्बर्स कहते हैं। डिपोर्ट कर रहा था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई जीव जिंदा बचे। इसी डर से जो है मिसेज एस, नरेटर की जो मदर थी ना, वो सोच रही थी कि कल को अगर हमारी भी प्रॉपर्टी का जो ऑक्यूपेशन हो गया ना, अगर कब्जा हमारी प्रॉपर्टी पर भी होगा तो हमारी सारी कीमती चीज़ें चली जाएंगी। और वो चाहती थी कि उनकी सारी कीमती चीज़ें बच जाएं। इसीलिए उसने अपनी जो नॉन ज्यूइश फ्रेंड थी ना, डार्लिंग, उससे ये रिक्वेस्ट की, और वो जो लेडी एक एक करके धीरे धीरे करके सारे सामान को वहाँ से लाती रही। लेकिन वो लेडी इतनी धूर्त और निहायत लालची निकली, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, इतनी लालची निकली वो। Have you agreed with her that she should keep everything I asked? अच्छा, क्या आप इस बात से सहमत हो कि वो आपकी सारी चीजों को रख लेगी? As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that। जब बड़ों के बीच में बड़ों के डिसीजन को हम डिफाई करते हैं ना, तो बड़े लोग ऐसे ही गुस्सा हो जाते हैं। वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ठीक कह रहा है या ठीक कह रही है, बिल्कुल नहीं सोचते। तो बड़े लोग अक्सर जो है गुस्सा हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि इन छोटों को, इन छोटे बच्चों को कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो यही नरेटर के साथ, उसकी माँ के साथ में हुआ था कि वो चिल्ला के पड़े, अच्छा जरूरी है ये सब पूछना, तुम तो इंसल्ट कर रहे हो ऐसे पूछ के। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। यानी जिस जोखिम को वो उठा रही है उसके बारे में तो आपने नहीं सोचा। हर बार जब भी वो यहाँ से जाती है, पूरा सूटकेस और बैग भर के ले जाती है। कितनी प्रॉब्लम झेल रही है। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced। मेरी माँ को ऐसा लग रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी चीजें। She looked at me reprovingly। and एक स्कॉल्डिंग तरीके से वो मेरी तरफ देखी। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। और इस डांट के बाद में हम दोनों ने कभी भी इस तरह की कोई बातें नहीं की इस मैटर पर। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way। यानी इसी बीच जो नरेटर वहां से, आई मीन कहाँ से, फिर से स्टोरी जो है करंट में आ गई, प्रेजेंट में, यानी आफ्टर वॉर आ गई है। मैं स्टेशन पर आ गई थी बिना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए उन चीजों को जिन चीजों से नरेटर फेमिलियर थी कभी। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। वॉर के बाद से पहली बार मैं जो अपने जाने माने प्लेसेस पर घूम रही थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। लेकिन जो मैं आगे और ज्यादा चीजों को नहीं देखना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू सी ओनली नेसेसरी थिंग्स। I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time। मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी, यानी उन गलियों को पहचान करके और उन घरों को पहचान करके जो मेरे दिमाग में आज भी एक प्रेशियस टाइम की मेमोरी बनी हुई थी, यानी प्री वॉर की मेमोरी थी, जहाँ पर कभी उनका घर हुआ करता होगा।
जहाँ पर कभी उनके नॉन रहा करते होंगे, जहाँ पर कभी उसका हैप्पीएस्ट टाइम गुजरा होगा। इमेजिन कीजिए 2 मिनट के लिए कि अगर आपका कोई, आप मान लो माइनॉरिटी से हैं और आपके प्रॉपर्टी को कोई क्या कर ले, कब्जा कर ले, प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले, इस बीच आप अपने नियर और डियर को खो दें, फिर उसके बाद में आप जो है सर्वाइव कर जाए, सर्वाइव करने के बाद में आप जो फिर से उन्हीं प्लेसेस पर घूमें, तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा। आपके अंदर वो सारी फीलिंग्स जाग जाएंगी जो अटैच हो रखी थी उस जगह से। वेल, in the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. Again the story is in the flashback. It was the morning after the day my mother had told me about her. कि मॉर्निंग का टाइम था, आफ्टर द डे यानी उस दिन के बाद की जस्ट मॉर्निंग थी जब मेरी माँ ने मिस्टर डॉलिंग के बारे में मुझे बताया था। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स। क्या हुआ था एक दिन कि मैं जो लेट उठी थी और नीचे आ रही थी। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। मैंने मेरी माँ को देखा था कि वो किसी को सी ऑफ कर रही थी। अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक, एक ब्रॉड बैक वाली महिला। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर, शी बैकोन्ड टू मी। शी बैकोन्ड टू मी यानी मेरी माँ ने जो इंट्रोडक्शन करवाया था मिस्टर डॉलिंग का मेरे साथ में, और मेरी तरफ उंगली उठाते हुए कहा, मेरी तरफ उंगली करते हुए कहा था कि देखो ये मेरी डॉटर है। and picked the suitcase under the coat rack. The woman nodded and picked. उस महिला ने आई मीन मिस्टर डॉलिंग ने क्या किया, सिर हिलाया, गर्दन हिलाई। एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और सूटकेस को उठाया और कोट की रैक में छुपा लिया। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड शेपलेस हैट, यानी ब्राउन कोट पहनी हुई थी और एक शेपलेस सा हैट पहनी हुई थी। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड। क्या ये बहुत दूर रहती हैं, मैंने पूछा। Seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case, यानी जिस हैवी केस को वो लेकर के जा रही थी, तभी मैंने उनसे पूछ लिया था क्या ये बहुत दूर रहती हैं, क्योंकि बहुत दूर रहती हैं तो ये इतने सामान को कैसे लेके जा पाएंगी। तब उसकी मदर ने उसे बताया था, इन मार्कोनी स्ट्रीट सैड माई मदर नंबर 46 रिमेंबर दैट। यानी ये आंटी ये मिसेस डॉलिंग जो है 46 मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं और आप इस एड्रेस को याद रखना। इसीलिए याद रखवा रही थी कि हो सकता है फ्यूचर में उसको जाना पड़े अपनी चीज़ों को लेने के लिए। मिसेज एस वॉज इन दैट ओपिनियन दैट ऑब्जेक्ट के टच में आने से क्यों लग रहा था, वो इसीलिए लग रहा था बिकॉज वो ऑब्जेक्ट किसी ऐसी मेमोरी से लिंक हो रखे थे जो अब इस दुनिया में नहीं थी। यानी वो ऑब्जेक्ट का कनेक्शन एक ऐसे व्यक्ति से था हु इज नो मोर इन द वर्ल्ड। कौन था ये जिसका कनेक्शन ऐसे व्यक्ति से था जो अब दुनिया में नहीं था? Narrator's mother. Narrator's mom. Very nice. That is why the narrator was afraid of being confronted with the things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes. वो जो छुपे हुए रखे थे cupboards में, boxes में, and waiting in vain until they were put back in their place again.
which had endured all those years because they were things. अच्छा वो इतनी चीज़ों इतने सालों को इसीलिए सर्वाइव कर गए थे क्योंकि वो चीज़ें थी, उन्हें फेंक नहीं सकते थे, बस ये था, बाकी अब उनका कोई मीनिंग नहीं रह गया था। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, यानी वर्ल्ड वॉर 2 शांत हो गया, 1945 का टाइम आ गया, हर चीज़ जो है शांत हो गई, नॉर्मल हो गई। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, यानी युद्ध के टाइम पर जो चीज़ें महंगी हो गई थी, जिन चीज़ों का डिलीवर करना बड़ा ही इम्पॉसिबल सा हो गया था, वो सब कुछ नॉर्मल हो गया था। खाने की चीज़ें सस्ती हो गई थी। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, यानी अब आप अपने घर में अनथ्रेटन्ड सो सकते थे। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप अनथ्रेटन्ड, अ रूम विद अ व्यू, यू आर मोर यूज्ड टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, यानी आप अपने रूम में से अब जो है चारों तरफ देख सकते थे। ये सारी बातें इसीलिए कही जा रही हैं, लिबरेशन की बात कह लो या अनथ्रेटन्ड अपने बिस्तर पर सोने की बात कह लो, इसीलिए है क्योंकि जूज वर नॉट फ्री ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, बिल्कुल भी फ्री नहीं थे 39 से लेकर के 42 तक, खास करके, वैसे तो 45 तक है पर खास करके 42 43 तक तो बुरा हाल था। उनकी फ्रीडम को करटेल कर दिया गया था, उनको लिमिट कर दिया गया था। उनका एक टाइम होता था जब वो ज्यूज क्वार्टर से निकल सकते थे, अगर बिफोर टाइम कोई निकल गया तो उसको डिपोर्ट कर देते थे और उनको गैस चैम्बर्स में भेज देते थे, जहां पर उनको हजारों की संख्या में हॉलोकास्ट होता था। तो इसीलिए कह रही कि आफ्टर द इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, लिबरेशन के बाद में जब चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई थी, बेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप अनथ्रेटन्ड, अ रूम आउट ऑफ विच यू कुड सी एनीवेयर वेयरएवर यू विश टू सी, कोई इशू नहीं। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल दोज पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, और एक दिन अचानक से मैं क्यूरियस हो उठी उन ऑब्जेक्ट्स के लिए, उन पोजेशंस के लिए जिनके बारे में मैंने सोचा था कि वो आज भी उसी एड्रेस पर होंगे। किस एड्रेस पर? Marconi Street. Marconi 46 Street, number 14. Marconi Street 46. I wanted to see them, touch, remember, मैं उनको देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी और उन्हें याद करना चाहती थी। After my first visit in Wayne, Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. How was the first visit of the narrator at Mrs. Darling's home? Non-satisfactory. Sorry? Not satisfactory. Fruitless, vain, useless. डिसअपॉइंटेड था। क्यों था? क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग ने पहचानने से इनकार कर दिया था। दैट इज व्हाई द नरेटर डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकंड टाइम। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपनड द डोर टू मी, मेरे लिए दरवाजा खोला। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम। नो शी सेड माय मदर इज डूइंग एन एरांड। माय मदर इज डूइंग एन एरांड। मेरी माँ किसी छोटे मोटे काम करने के लिए बाहर गई हुई है। एरांड का मतलब होता है टू डू अ पैटी वर्क, स्मॉल वर्क, लाइक आप बैरोड में रह रहे हैं, तो आप अपने घर से थोड़ी दूर 200 मीटर 400 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर मार्केट में जाकर के कोई सामान परचेज करके लाएं। दिस इज कॉल्ड एरांड। ओके, प्रोनाउंस द वर्ड प्रॉपरली। जो ई लगा हुआ है उसे म्यूट मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, हिंदी का वर्ड निकल के आ जाएगा। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर। कोई बात नहीं, मैं उनके लिए वेट कर लूंगी, सेड द नरेटर। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी वरांडा में। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का, हनुक्का कैंडल होल्डर, ओल्ड फैशन्ड हनुक्का कैंडल। हनुक्का एक एक्चुअली में फेस्टिवल होता है ज्यूज का, तो उस पर वो कैंडल होल्डर में कैंडल लगाते हैं। हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, जो लटका हुआ था मिरर के ठीक बगल में। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वाज मच मोर कमर्शियल देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। अच्छा, ये हनुक्का कैंडल होल्डर ये नरेटर की मम्मी का था, जिसको नरेटर कह रही है कि हमने इसको कभी भी यूज नहीं किया था, क्योंकि ये कैसा था, ये मच मोर कमर्शियल था देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। मच मोर कमर्शियल यानी मच मोर हैवियर। कमर्शियल का मतलब हैवी होना, भारी भरकम होना। भारी भरकम होने की वजह से ही नरेटर ने
और उसकी माँ ने इसको कभी भी यूज नहीं किया था। आई मीन फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट द नरेटर आइडेंटिफाइड, पहला ऑब्जेक्ट जो नरेटर की माँ का था, इसको मिस्टर डॉलिंग के घर में पहचान लिया था नरेटर ने। Want to sit down? asked the girl. She held open the door of the living room. बेडरूम का दरवाजा खोल दी और पकड़े रही और मेरे को कहा तुम बैठोगे नहीं क्या? एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके बगल से होकर के गुजरती हुई अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, आई स्टॉप, मैं रुक गई, मैं हॉरिफाइड थी। क्यों? बिकॉज शी वॉज इन अ रूम शी न्यू एंड डिड नॉट नो, क्योंकि वो एक ऐसे रूम में थी जिसके बारे में जिसकी कुछ चीजों के बारे में वो जानती थी और नहीं भी जानती थी। आई मीन शी वॉज amidst the stuff that she was familiar with, यानी वो ऐसे स्टफ के बीच में खड़ी हुई थी, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बीच में खड़ी हुई थी, या फिर ये कहें कि उसके चारों तरफ ऐसे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए थे जिन ऑब्जेक्ट से उसका कोई कनेक्शन था, और वो ऑब्जेक्ट अपना एग्जिस्टेंस खो चुके थे। जैसे ही उन ऑब्जेक्ट को देखा, दैट ऑब्जेक्ट, दो जो ऑब्जेक्ट इवोक्ड द मेमोरीज ऑफ हर मदर, उसकी माँ की मेमोरीज को क्या कर दिया? तरोताजा कर दिया। दैट इज व्हाई शी फेल्ट हॉरिफाइड, एक रीजन हॉरिफाइड फील करने का। दूसरा रीजन, I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere, यानी लेकिन उन्होंने एक स्ट्रेंज से एटमोस्फियर में मुझे ऑप्रेस किया था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, या फिर सेकंड रीजन ये था कि टेस्टलेस वे में चीजें अरेंज हो रखी थी। तुम्हारी खुद की कीमती चीजें, तुम्हारे पेरेंट्स की कीमती चीजें, जब कोई दूसरा व्यक्ति इस तरीके से यानी बेकद्र उन्हें डाल देता है ना, तो ऑब्वियसली तुम हॉरिफाइड फील करोगे। देखो क्या समय आ गया है। That is why the narrator felt horrified। समझ गए क्यों हॉरिफाइड फील कर रही थी? एक तो उसके चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट पड़े हुए थे वो उसकी माँ की मेमोरीज को ताज़ा कर रहे, दूसरा क्या नाम है, वो ऑब्जेक्ट जो टेस्टलेस वे में अरेंज हो रखे थे। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर ऑफ द मगी स्मेल दैट हंग देयर, या फिर हो सकता है कि फर्नीचर, जिस फर्नीचर को वो वहां से लेकर के आई थी मिसेज एस के घर से, उस फर्नीचर की स्मेल की वजह से भी वो जो है कैसा फील कर रही थी? हॉरिफाइड फील कर रही थी। आई डोंट नो बट आई स्कार्सली डेयर्ड टू लुक अराउंड मी, मुझे नहीं पता लेकिन मैंने मुश्किल से हिम्मत की थी मैंने अपने चारों तरफ देखने की। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ, लड़की मेरे लिए चेयर ले आई और मैं उस पर बैठ गई और मैं चारों तरफ जो है देखने लग गई और उस वूलन टेबल क्लॉथ की तरफ देखने लग गई। आई रब्ड इट, मैंने इसको क्या किया? उंगली से रब किया। My fingers grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. यानी वो उसके पैटर्न को फॉलो कर रही थी और जो है अभी जो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि इस कपड़े में कहीं ना कहीं एक बर्न मार्क होना चाहिए, जिस बर्न मार्क को उन्होंने कभी भी रिपेयर नहीं करवाया था। My mother will be back soon, said the girl. I have already made tea for her. Will you have a cup? मेरी माँ शीघ्र ही आती होगी, मैंने उनके लिए चाय बना ली है। Would you like to have a cup of tea? The girl offered a cup of tea to the narrator. Thank you, उसने कहा। I looked up. The girl put cups ready on the tea table. लड़की ने जो है टी टेबल पर कप्स को रेडी किया। She had a broad back, just like her mother. इसकी भी बैक ब्रॉड है अपनी माँ की तरह। She poured her tea from a white pot. उसने क्या किया था कि white pot में से टी pour out की कप्स में। All it had was a gold border on the lid. I remember. मुझे याद आ रहा था कि टी केटल के ऊपर कहीं ना कहीं ढक्कन के पास में क्या होगा? गोल्ड कलर का बॉर्डर होगा इसका, क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि ये टी केटल भी किन की है? उन्हीं की है। She opened a box and took some spoons out. उसने एक बॉक्स खोला और उसमें से क्या निकाली? स्पून निकाले। That is a nice box. I heard my own voice. मैंने मेरी खुद की आवाज सुनी, अरे ये तो बॉक्स बहुत अच्छा है। अंदर ही अंदर से नैरेटर की आवाज आ रही है। It was a strange voice, as though each sound was different in this room. मानो कि हर साउंड इस रूम में जो हो रहा था ना वो डिफरेंट हो। Oh, you know about them? अच्छा आपको पता है इनके बारे में? She had turned round and
ब्रॉट मी माई टी, वो घूमी और मेरी चाय लेकर के आई। शी लाफ्ड, माई मदर सेज इट इज एंटीक, यानी कि मिसेस डॉलिंग अपनी बेटी को बताती रहती थी कि एंटीक चीज़ें हैं। एंड दीज थिंग्स हैव बीन परचेज्ड फ्रॉम, ये चीज़ों को मिसेस डॉलिंग ने इन चीज़ों के बारे में अपनी बेटी को क्या बताया था? Tell, what did Mrs. Dowling tell about the antique things? Mrs. Dowling said that these all things are antique and she had got them from an auction. कहाँ से लिया उसने इनको? किसी ऑक्शन से लिया है, यानी किसी नीलामी से लिया है। We have got lots more, हमें बहुत सारी मिली हैं ऑक्शन से। She pointed round the room. See for yourself, उसने उंगली करके दिखाया, देखो खुद से ही देख लो। I had no need to follow her hand, मुझे उसका हैंड फॉलो करने की जरूरत ही नहीं थी। I knew which thing she meant, उसे पता था नरेटर को ये कौन सी चीज़ों की बात कर रही है। I just looked at the still life over the tea table, मैं तो बस टी टेबल की तरफ देख रही थी। As a child I have always fancied the apple on the pewter plate, यानी जब मैं छोटी बच्ची थी ना तो मैं हमेशा कल्पना करती रहती थी कि मैं प्यूटर की प्लेट में क्या खाऊं, एप्पल खाऊं। प्यूटर एक अलॉय होता है, मिक्स अलॉय होता है एक्चुअली में, अलॉय मेटल का, इसे जस्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जस्ता। We use it for everything, she said, हमने इसको हर चीज के लिए यूज किया था, हर चीज के लिए यूज करते हैं। She said once we even ate off the plate hanging there on the wall, एक और क्या हुआ था कि जो प्लेट लगी हुई है दीवार पर, हमने उनमें भी खाना खाया था। I wanted to so much but it wasn't anything special, मैं वो बहुत ज़्यादा देखना चाहती थी उन चीज़ों की, लेकिन ना उनमें कुछ भी खास नहीं था। I had found the burn mark on the tea table, यानी जो बर्न मार्क जिसे वो नरेटर ढूंढ रही थी, वो बर्न मार्क उसे टी टेबल क्लॉथ में मिल गया था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, यानी जैसे ही वो उस बर्न मार्क को देख रही थी तो वो लड़की यानी कि मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी थी ना, वो उसकी तरफ, नरेटर की तरफ घूर करके देख रही थी, क्वेश्चनिंग मानो कि वो कुछ पूछना चाहती है। यस आई सेड, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दोस लवली थिंग्स, हाँ आप इतनी हैबिचुअल हो जाते हो इतनी सुंदर सुंदर चीज़ों के बीच बीच में रह करके। You hardly look at them anymore, तो आप जो बहुत ज़्यादा इन पर ध्यान नहीं देते। You only remember them, you only notice them when something is missing, जब कोई चीज़ क्या हो जाती है? मिस हो जाती है। Because it had also to be repaired because you have lent it, या फिर हो सकता है तब मिस करते हो जब आप इनको रिपेयर कराने के लिए ले जाते हो, या फिर तब मिस करते हो जब आपने इसको क्या कर दिया हो, किसी को उधार दे दिया हो। एग्जाम्पल के लिए